Hello friends, welcome to our channel, and today we are going to discuss about the important questions of geography, chapter resources and development, that is chapter number 1. And these are the most important questions, and it is covering about 99% important questions of your chapter 1. So break the record, let's start. So you can see here we are with geography chapter number 1 and important question answers. So friends, first question that is too important and अक्सर ये क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज. क्यों ज़रूरी है रिसोर्सेज को कंजर्व करना. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स वेरी 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 ईयर रेगुलरली. सो there are 10 questions. I bought today for you 10 questions. Write in your copy and mark all important questions. So answer is also with us. First point, it is the main source of our daily need. Second, they are limited and have to keep it for our future generations. Third point, if these resources are harmed, we will have short quantity of resources for food and living. So this is the answer of the question number first, and the question is very 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 important. You have to mark it up and you also have to write in your notebook. So let's see the question number second. So here is question number second, that is, which three process or stages are involved in resource planning in India. So here is question number 2, and the answer is first step or first process is resource inventory. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation of the resources. Second is evaluation, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Third point, that is the process which involved in resource planning in India is development. That is matching the resource development plans with overall national development plans. ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं और एनसीईआरटी की बुक में से ही मैंने क्वेश्चन और आंसर्स बनाए हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया. सो इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है एंड व्हाट आर इट्स रिलीफ फीचर. रिलीफ फीचर मतलब कैसे कैसे फीचर्स हैं लैंड के इंडिया में. सो द आंसर्स कम आउट. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, total land area. Total land area of India is 3.28 million square kilometer. Yes, और 2.4%. अगर टोटल ओवरऑल करें हम इंडिया का वर्ल्ड में से तो 2.4% इंडिया आता है वर्ल्ड में. देन रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं. सो फर्स्ट इज 43% प्लेन्स, दैट इज एग्रीकल्चर जहाँ पे हो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं. सेकेंड इज 30% माउंटेन कवर कर रहा है इंडिया का, दैट इज टूरिज्म जाते हैं, रिवर्स होती है माउंटेन्स में मोस्टली. देन थर्ड इज 27% जो है इंडिया में प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं एंड जहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं. सो नाउ द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज गांधी जी ओपिनियन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब कई बच्चों को लगेगा ये हिस्ट्री कहाँ से आ गई, पर नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का ही क्वेश्चन है कि गांधी जी का क्या ओपिनियन था, कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए. So answer is, Gandhi ji was very appropriate in voicing his concern about resource conservation. He said that there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. So now question number 4 is, what is gross zone area.
सो द आंसर इज, ये 1 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है, दैट इज ग्रॉस जोन एरिया इज द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में और हाफ मार्क्स का आ जाता है, दैट इज व्हाट इज द नेट जोन एरिया। सो द आंसर इज नेट जोन एरिया is the area sown with crops but is counted only once। तो ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेशन बच्चे नहीं लिख पाते, तो इसलिए ये मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, बिकॉज 1 मार्क्स और एवरी मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर बोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डू वी नीड टू हैव प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज इन इंडिया। हमें क्यों प्लान करते हुए चलना चाहिए रिसोर्सेज इंडिया में जो हैं। या फिर ये क्वेश्चन दूसरे टाइप में भी आ सकता है, दैट इज इंडिया इज रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, डू यू एग्री। या फिर थर्ड टाइप भी आ सकता है ये, दैट इज इंडियाज वास्ट और डाइवर्स साइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, तो ये 3 टाइप में हमारे पास आ सकता है, एक ये और एक ये। तो आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, एंड देन द आंसर वी विल रीडिंग, दैट इज फर्स्ट पॉइंट रिसोर्स। जब लार्ज क्वेश्चन है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट्स तो मस्ट है उसमें लिखने, है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स प्लानिंग हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has too much diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but deficient in some other resources. अब examples दे रहे हैं हम सेकेंड पॉइंट में, that is झारखंड, छत्तीसगढ़ and मध्य प्रदेश are rich in mineral and coal. Third point is, you can see here, third point is Arunachal Pradesh is rich in water but lacks in infrastructural development. Fourth point is the state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The fifth point is the cold desert of Ladakh has very rich cultural heritage but it is deficient in water infrastructure and some important minerals. अब यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं बिकॉज आप फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को एक साथ कंसर्न भी कर सकते हैं अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। So the 6th point is resource planning calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. Now let's go with the 7th question, that is what is soil erosion and what are its causes. This is a very important question which comes almost regularly year and in the boards. Okay, so question number 7th is what is soil erosion and what are its causes. So the answer is, first point is what is soil erosion. उसका आंसर है the denudation of the soil cover and subsequent washing down is known as soil erosion. Now the second point, that is what are its causes. इसका point है its main causes are like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. ये इसके causes हैं। अब आता है क्वेश्चन 8 जो 1 मार्क्स में आ सकता है या फिर फिलअप MCQ किसी भी चीज़ में ये मेनली आता ही आता है। सो व्हाट इज, मतलब डिफाइन करना है कॉन्टोर प्लगिंग। सो आंसर इज प्लगिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स कैन बी डिसेलरेटेड द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कॉन्टोर प्लगिंग। नाउ द क्वेश्चन 9th इज व्हाट इज शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है। मेनली सबको सॉइल इरोजन के बारे में तो पता होता है पर शीट इरोजन के बारे में नहीं पता होता। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वाटर फ्लोज एज द शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस the topsoil is washed away, this is known as sheet erosion. Now the question 10th and the last important question in this chapter, अब ये पार्ट 1 हो सकता है क्योंकि एक जो सेकेंड पार्ट होगा वो मैं बनाऊंगी ऑल द टाइप्स ऑफ सॉइल पे, ठीक है ना। तो इसमें मैंने सॉइल का कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करा, सॉइल मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और उसमें सिर्फ उसके बारे में ही होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th इज एक्सप्लेन सम फार्मिंग टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन।
सो कौन कौन सी फार्मिंग की ऐसी टेक्निक है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लगिंग अलोंग द कॉन्टोर, दैट इज contour plugging. Second is terrace cultivation. Third is strip cropping. Fourth is discourage shifting agriculture. जो shifting agriculture होता है फॉरेस्ट में जो फार्मर्स भी करते हैं उसे डिस्करेज करा जाए. एंड शेल्टर बेल्ट्स. So this is for you. These are the 10 क्वेश्चंस दैट आई ब्रिंग फॉर यू. सो इसे नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मोस्ट प्रोबेबली ये आते ही हैं आपके बोर्ड्स में. सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि आप 99% अबव स्कोर कर पाएँ सोशल्स जैसे पेपर्स में भी, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल होंगी वो लेकर आते रहेंगे. तब तक के लिए बाय, गुड बाय.